यापर आम आलोचना करवा सपुष्पक उद्भिद लिंगीय जन्म। आवृतबीजी उद्भिद जनन अंश गुड़िक फूल मध्य थाए। फूलर विभिन्न अंश गुड़िक वृत्तिमंडल, दलमंडल, पुंकेसर चक्र, फलिका चक्र इत्यादि। पुंकेसर और फलिका चक्र एगुड़िक हेउची फूलर जनन अंश। एथिरे जायक कोष मान थांती। केवल केसर बा केवल फलिका थिबा फूल को एकलिंगी फूल कहा जाए, जेभली कखारु अमृतभंडा। से भली मंदार सोरिष फूलरे उभय केसर और फलिका थिबारु सेगुड़िक द्विलिंगी फूल कहा जाए। यापर आम देखा पराग संगम बा परागण। समायन पूर्व फूलरे थिबा पराग रेणु विभिन्न माध्यम आसी फूलर गर्भशीर्ष रे पड़े। यह परागण कहा जाए। गोटे फूलर पराग रेणु से फूलर गर्भशीर्ष रे पड़ी तार डिंबाणु को यदि समायन करे यह स्वपरागण कहा जाए। किंतु उद्भिद गोटे जातिर फूलर पराग रेणु पतंग, पक्षी, जल, वायु आदि विभिन्न माध्यम आसी से जातिर अन्य एक फूलर गर्भशीर्ष रे पड़िले एवं गर्भाधान हेले यह पर परागण कहा जाए। गर्भशीर्ष रे शर्करा, जैविक अम्ल और अन्यान्य पदार्थर मिश्रण रु एक अठालिया पदार्थ जात हुए। पराग रेणु यही पदार्थर स्पर्श रे आसिले सेठारे लागी रहे और अंकुरित हुए। या पर हम देखिबा फलिका और गर्भाशयर गठन किभली होइता है। फलिकार तीनोटी अंश थाए। यार स्फीत शेष भाग होउची गर्भाशय, मध्य भागटी गर्भदंड एवं उपरी भागटी गर्भशीर्ष। सहडिंबकटी गोटे वृंत द्वारा गर्भाशय संयुक्त हुई रही था। डिंबक मध्य डिंबकाय को आवृत करी गोटे बा दुईटी आच्छद रही था। ये आच्छदर अग्रभाग रे गोटे छिद्र रही थाए, ताकू बीज रंध्र कहुए। डिंबकाया गोटे भ्रूणाशय, डिंबकाय गोटे भ्रूणाशय थाए। भ्रूणाशयर अग्रभाग रे गोटे डिंबकोश, तार दुई पाखरे दुईटी सहायक कोश, वृंत आड़कू तीनटी प्रतिमुख कोशिका रही था। भ्रूणाशय मध्य भाग रे लागी लागी हुई दुईटी मेरु न्यष्ठी रही था। समायन ठीक पूर्वर यही दुईटी न्यष्ठी मिलित हुई द्वितीयक न्यष्ठी रे परिणत हुआ। या पर हम देखिबा उद्भिद रे समायन प्रक्रिया किभली संपादित होता। पराग रेणु गर्भशीर्ष रे पड़िया परे तार बाहर आवरणटी फाटी जाए। भीतर आवरणटी नली आकार रे एई गर्भदंड मध्य भ्रूण आड़ को बढ़े।
ଏହାକୁ ପରାଗ ନଳୀ କୁହାଯାଏ। ପରାଗ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ସମୟରେ ସମବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରାଗ ନଳୀରେ କିଛି କୋଷରସ ସହିତ ଦୁଇଟି ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। କ୍ରମେ ଏହି ପରାଗ ନଳୀ ବୀଜରନ୍ଧ୍ର ବାଟ ଦେଇ ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଥିବା ଭ୍ରୂଣାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଥିରେ ପରାଗ ନଳୀର ଅଗ୍ରଭାଗ ଫାଟିଯିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ଦୁଇଟି ଭ୍ରୂଣାଶୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବା ଡିମ୍ବକୋଷ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଯୁଗ୍ମଜ ଗଠନ କରେ। ଏଥିରୁ ଭ୍ରୂଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁଯୁଗ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ କଣି ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗଠନ କରେ। ଏହି ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟିରୁ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭ୍ରୂଣକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପରାଗ ନଳୀରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ପରାଗ ନଳୀ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସପୁଷ୍ପକ ଆବୃତ ବୀଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଦୁଇଟି ସମାନ କ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଡିମ୍ବାଣୁ ବା ଡିମ୍ବକୋଷର ସମାୟନ ଓ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କଣି ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କର ମିଳନ। ଯୁଗ୍ମଜର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 2n ସଂଖ୍ୟକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଭ୍ରୂଣପୋଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ତ୍ରିଗୁଣିତ ବା 3n ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସପୁଷ୍ପକ ଉଦ୍ଭିଦର ଏହି ସମାୟନକୁ ଦ୍ୱିସମାୟନ କୁହାଯାଏ। ସମାୟନ ପରେ ଯୁଗ୍ମଜ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଡିମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଭ୍ରୂଣ ଏକ କଠିନ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଡିମ୍ବାଶୟଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଫଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ଦଳମଣ୍ଡଳ ଆଦି ଶୁଖି ଝଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରୂଣ ବା ଭବିଷ୍ୟତର ଉଦ୍ଭିଦଟି ରହିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଚାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୀଜ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦରେ ସମାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିଭଳି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରାଗରେଣୁ ଗର୍ଭଶିଶରେ ପଡ଼ିବା ପରେ ତାର ବାହାର ଆବରଣଟି ଫାଟିଯାଏ। ଭିତର ଆବରଣଟି ନଳୀ ଆକାରରେ ଏହି ଗର୍ଭଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରୂଣ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼େ। ଏହାକୁ ପରାଗ ନଳୀ କୁହାଯାଏ। ପରାଗ ଅଙ୍କୁରିତ ହେବା ସମୟରେ ସମବିଭାଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ଦୁଇଟି ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ପରାଗ ନଳୀରେ କିଛି କୋଷରସ ସହିତ ଦୁଇଟି ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ଗୋଟିଏ ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟି ରହିଥାଏ। କ୍ରମେ ଏହି ପରାଗ ନଳୀ ବୀଜରନ୍ଧ୍ର ବାଟ ଦେଇ ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଥିବା ଭ୍ରୂଣାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ସେଥିରେ ପରାଗ ନଳୀର ଅଗ୍ରଭାଗ ଫାଟିଯିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ଦୁଇଟି ଭ୍ରୂଣାଶୟ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ବା ଡିମ୍ବକୋଷ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଯୁଗ୍ମଜ ଗଠନ କରେ। ଏଥିରୁ ଭ୍ରୂଣର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୁଯୁଗ୍ମଟି ଦ୍ୱିତୀୟ କଣି ନ୍ୟଷ୍ଟି ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଗଠନ କରେ। ଏହି ଭ୍ରୂଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟିରୁ ଭ୍ରୂଣପୋଷ ଜାତ ହୁଏ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭ୍ରୂଣକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପରାଗ ନଳୀରୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ଭ୍ରୂଣାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ନଳୀ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ପରାଗ ନଳୀ ଭିତରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପୁଯୁଗ୍ମଙ୍କ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମଙ୍କର ମିଳନରୁ ସମାହିତ
तेणु प्रकृत में सपुष्पक आवृत बीज उद्भिद दुईटी समायन क्रिया देखा मिले। प्रथमटी है पूजुगुंग सहित डिम्बाणु बा डिम्बकोशर समायन और अन्यटी है द्वितीय कन्याष्टि सहित द्वितीय पूजुगंगर मिलन। एटी उद्भिदर जनन सरिला। यापर आम प्राणी रे जनन विषय आलोचना करिबा। केतेक प्राणी वंशवृद्धि केवल अलिंगी जनन बा केवल लिंगीय जनन द्वारा करुथिला बेले केतेक प्राणी उभय प्रक्रिया द्वारा जनन प्रक्रिया करते। प्रथम देखिए अलिंगी जनन। अलिंगी जनन दुईटी साधारण उपाय होची विभाजन और कर्कदुगम बा कलिकन। प्रथम देखिए विभाजन। विभाजन एक सरल जनन प्रक्रिया। यह दुई प्रकार द्विविभाजन और बहु विभाजन। द्विविभाजन एमिबा पारामेसियम इग्लिना परी जीव माने यही प्रकार विभाजन करती। यही प्रकार जनन रे मातृ जीव ठारू दुईटी अपत्य सृष्टि हुए। एमिबा मधुर जल प्राणी अनुकूल परिस्थिति रे ये प्रचुर खाद्य खाई शरीर वृद्धि घटाए। सर्वबृहत आकार रे पहुंचा परे निजर कूटपाद गुड़िक प्रत्याहार करी यह गोल आकार धारण करे। यापरे समविभाजन द्वारा गोटे मात्र एमिबारु दुईटी अपत्य सृष्टि हुए। अपत्य गुड़िकर अपत्य मान शरीर पर कूटपाद सृष्टि हुए। एमाने कूटपाद साहाय्य परिवेश खाद्य संग्रह कर स्वाधीन भाव जीवन यापन करते। यही प्रक्रिया संपूर्ण होगा प्राय 30 मिनिट समय लगे। एमिबार यही द्विविभाजन प्रक्रिया वंशवृद्धि घटुवा जो तार केबे वृद्धावस्था आसे नहीं किंबा प्राकृतिक मृत्यु हुए नहीं। से सब दृष्टि एमिबा अमर। से भली पारामेसियम और यूग्लिना मध्य द्विविभाजन द्वारा निजर जनन क्रिया संपादन करते। पारामेसियम तार कोश विभाजन अनुप्रत पृष्ठ रे संपादित करुथिबारु यहाकू अनुप्रस्थ द्विविभाजन कहुए। एवं यूग्लिना अनुलंब भाव विभाजित होइथिबारु यहाकू अनुलंब द्विविभाजन कहुए। बहुविभाजन
खरा दिने पोखरी गाड़ियार पानी सुखीगले बा अत्यधिक ठंडा जो पानी बरफ हो गले अर्थात प्रतिकूल परिवेश एमेबा तार कूटपाद गुड़िक प्रत्याहार करी निज शरीर चारिपटे 3 स्तर विशिष्ट एक कठिन आवरण तैयारी करे। यही कठिन आवरण को कोष्ठिका कहुए। यही कोष्ठिका भितर तार न्यष्ठिर बारंबार विभाजन घटे फल 500 रु 600 टी छोट न्यष्ठि तैयारी हुए। प्रत्येक न्यष्ठि किछि परिमाण कोष जीवक द्वारा आवृत हुई एगुड़िक कुनी एमिबा बा एमिबुला रूप से बाहर। वर्षा दिन आगमन एसबू कुनी एमि गुड़िक बाहर को बाहर सेमानक शरीर कूटपाद सृष्टि हुए एवं परिवेश खाद्य ग्रहण करी साधारण जीवन यापन करते। एमिबार यही प्रकार बहु विभाजन जनन प्रक्रिया को स्पोरुलेशन कहुए। मनुष्य ठारे मलेरिया रोग सृष्टि करुवा जो प्लाज्मोडियम यही बहु विभाजन द्वारा निजर वंश वृद्धि करे। संक्रमित मशा जितेबाला सुस्थ लोक को कामुड़े प्लाज्मोडियम स्पोरोजोएट मनुष्यर रक्त भितरे मिसे एवं यह जकृत कोष मध्य प्रवेश करी बहु विभाजन द्वारा वंशवृद्धि करे। अर्थात प्लाज्मोडियम मध्य यही प्रकार बहु विभाजन करिଥାଏ। कोरकोद्गम केतेक एककोशी प्राणी स्पंज और हाइड्रा कोरकोद्गम उपाय अलिंगी जनन करिथाନ୍ତି। यह दुई प्रकार बाह्य कोरकोद्गम दुई है अंतः कोरकोद्गम। बाह्य कोरकोद्गम कौन परिवेश जितेबाला अनुकूल और खाद्य पदार्थ प्रचुर भाव मिले सेतेबाला एक सुस्थ वयप्राप्त हाइड्रा कोरकोद्गम उपाय वंश विस्तार करे। हाइड्रार मध्य भाग एक निर्दिष्ट प्रकार कोष एकाठी होई एक छोट आबु सृष्टि करती कोरको कहुए। यही आबु बा कोरक धीरे धीरे बड़ हुए यह मध्य को हाइड्रा शरीर गुहांतर प्रवेश करे। आबुर अग्रभाग तारा आकार एक पाटी और पाटीर चारिपटे कर्षिका सृष्टि हुए एवं यह देखा को एक छोट हाइड्रा परी देखा। ये छोट हाइड्राटी मातृ हाइड्रा सहित किछि दिन लगी निज कर्षिका साहाय्य जितेबाला खाद्य ग्रहण करने समर्थ हो जाए सेतेबाला तार मूल अंश संकुचित हुए एवं मातृ शरीर विच्छिन्न हुई एक नुआ हाइड्रा रूप में जीवन निर्वाह करे। यही प्रक्रिया हाइड्रा को 48 रु 96 घंटा समय लगे। अंतः कोरकोद्गम प्रतिकूल परिवेश और खाद्य पदार्थर अभाव देखादेले स्पंज निज शरीर भितर जेमुला तैयारी करे। ए जेमुला कौन स्पंज एक स्वतंत्र प्रकार केतेक कोष एकत्रित करे एगुड़िक चारिपटे एक कठिन आवरण सृष्टि करे। यही कठिन आवरण थिबा पदार्थ को जेमुला बा जेमुल कहुए।
यार एक रंध्र थाए ताकू माइक्रोफाइल कुआ जाए या बाहर को खोला थाए जेतेबेले परिवेश अनुकूल हबो सेतेबेले जेमुला भितरे थिबा कोष गुड़िक एई माइक्रोफाइल बाट दे बाहर को आसी नुआ स्पंज सृष्टि करत। पुनर्भवन कौनसी प्राणीर एक जनन प्रक्रिया नुहे। किछि प्राणी मानकर यह एक स्वतंत्र व्यवस्था। प्राणी शरीर कटि जाइथिबा बा भांगी जाइथिबा प्रत्येक खंडरू पुनर्भवन द्वारा एक संपूर्ण जीव जात हुए। जेभली हाइड्रा हाइड्रार शरीर को खंड खंड करी काटिदेले किछि दिन परे से प्रत्येक कटा खंड गोटे संपूर्ण पूर्ण विकसित हाइड्रा परिणत हो जाए। कारण एमानकर शरीर रे सर्वप्रसु बा पूर्ण विभवी कोष रही था। यही कोषटी शरीर गठन पर आवश्यक अन्य समस्त प्रकार कोष टिश्यू तैयारी करे।